नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुक करेंगे खबरों का। आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति राधा कृष्णन को उनके पद संभालने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला भी बोला। खड़गे ने कहा कि उन्हें दुख है कि सदन को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई देने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन को मजाकिया लहजे में सलाह देते हुए कहा, आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा ना देखें। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को अपने पुराने रवैये को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए याद दिलाया कि पिछली बार विपक्ष ने तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रिमूवल नोटिस दिया था और इस दौरान लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदन में हम आपको सीधा लिया चलते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। Sir, this is regarding the Manipur Goods and Services Bill, sir. The central government amended the Central Goods and Services Act of 2017, particularly the sections 121 to 134 of the Finance Act 2025. This was passed by the Parliament and enacted in August 2024. These changes also came into effect from October 2025, after more than half of the states updated their GST law. But unfortunately, Manipur GST amendments couldn't happen in time, as the State Assembly was in a suspended mode. Manipur Goods and Services Act 2017 was amended through an ordinance which was promulgated by the central government on 7th October 2025. Now this bill has been brought to replace the second amendment ordinance 2025 and give permanent effect to the amendments made to the Manipur GST Act in 2017. I'd like to say a few words on the salient features. A track and trace system will be introduced to closely monitor how certain sensitive goods move through the supply chain. This will help prevent leakages and make oversight more effective. Rules also dealing with the time of supply for vouchers are being removed, because issuing a voucher is not actually a supply of goods or services. This change will help avoid unnecessary disputes on when tax becomes payable. The wording plant or machinery is being clarified to plant and machinery and remove ambiguity for taxpayers while claiming input tax credit. This correction is being applied retrospectively from 1st July 2017 to settle past disputes as well. When a supplier issues a credit note to reduce the tax originally charged, the recipient will now be clearly required to reverse the corresponding input tax credit if already taken.
ensures symmetry and reduces interpretation issues. A 10% pre-deposit will be required for appeals before the appellate authority or the appellate tribunal, even in cases where only the penalty is being challenged. This keeps the appeal, the entire process of appeal, consistent and discourages frivolous litigation. And finally, sir, when the goods kept in a SEZ or a free trade zone or a free trade warehousing zone are sold before being taken out of that zone, such transactions will now be treated as neither a supply of goods nor a supply of services, providing clarity and avoiding unintended tax implications. Now, all these amendments were carried out in the Central GST Act for providing certainty to taxpayers and enhance the ease of compliance and the ease of living for taxpayers and businesses. It is important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well, so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. And that is why I request the House to kindly take it up and pass it. Thank you very much. माननीय श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Sir, the House is और अब खबरों का रुख करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन को उनके पद संभालने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला भी बोला है। खड़गे ने कहा कि उन्हें दुख है कि सदन को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई देने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन को मजाकिया लहजे में सलाह देते हुए कहा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को अपने पुराने रवैये को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा और याद दिलाया कि पिछली बार विपक्ष ने तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ अनाप शनाप का भाषा का इस्तेमाल कर रिमूवल नोटिस दिया था, जिससे उच्च सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची थी। Opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. please. आप बैठिए please. आप बैठ. Sir, I will look into it. I will look into it. Sir. I will look into it. Please, आप बैठिए. Chairman, Please, आप बैठिए. Rajya Sabha, being I look into custodian it. of Please, the आप entire बैठिए. House, belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I will look into disheartened. it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. Is why Honorable Leader of Opposition should refer
to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठे जी, आप बैठे। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। हमारे देश का एक, हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करें। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इस बयान पर अब विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। वहीं प्रियंका ने कहा कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और गंभीर एयर पॉल्यूशन जैसे जरूरी सार्वजनिक मुद्दों को उठाना ही संसद का असली मकसद है।
I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? ऑपोजिशन ड्रामा ना करें, डिलीवरी करें, बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्काहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो BLO ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है, वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है, कक्षा 11 की छात्रा लापता हुई है। 3 दिनों से छात्रा का पता नहीं चल रहा है। माता पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। छात्रा के साथ अनहोनी के परिजन आशंका जता रहे हैं। छात्रा की गुमशुदगी दर्ज की गई है। भदोकर थाना क्षेत्र की नई बस्ती की रहने वाली है छात्रा। 11वीं की छात्रा घर से लापता है। छात्रा के साथ अनहोनी की परिजन आशंका जता रहे हैं। पिछले 3 दिनों से छात्रा का पता नहीं चल पाया है। माता पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। माता पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सर हमारी बेटी जो है सुबह 7:30 बजे गई स्कूल, और उसके बाद हम स्कूल में गए सर और पूछे अपने मास्टर जी से, तो सर वो बोले बेटी आपकी स्कूल नहीं आई। सर जो है काफ़ी जो है इंतज़ार किए सर, शाम तक इंतज़ार की कि शायद हमारी बेटी अपने कहीं जो है हमारे जो है भाई बहन के पास गई होगी सर। तो उसके बाद जो है वहाँ पता चला कि किसी के यहाँ जो है नहीं गई सर। उसके बाद रात हो गई सर, फिर जो है हमने 10:90 पे फ़ोन किए सर। उसके बाद जो है FIR जो है वो हुआ सर। उसके बाद जो है कोई अभी पता नहीं हुआ सर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अज्ञात वाहन सवार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, तालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा खास सर्विस रोड का यह पूरा मामला है। तो तालग्राम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कन्नौज से अहम खबर आपको दिखा रहा है, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अज्ञात वाहन सवार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें, तालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा खास सर्विस रोड का यह पूरा मामला है। कौन गाड़ी खराब हुई, चलो तुरंत खत्म हुई हो, तुरंत वो खत्म। तो कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाना, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई है। अज्ञात वाहन सवार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की है। तालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा सर्विस रोड का यह पूरा मामला है।
और अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अगली खबर है, थाने के पास सड़क पर चले हैं लाठी डंडे। नाटक कंपनी के कलाकारों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। एक कलाकार ने दूसरे पर लाठियां बरसाई हैं। हमले में जमीन पर गिरा दूसरा कलाकार। मारपीट की घटना के बाद मारपीट की घटना के दौरान तमाशबीन बने रहे लोग। मारपीट का लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। थाने के बाहर होती रही मारपीट, पुलिस भी वहां नदारद रही। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट होते देख आपको बता दें आम जनता भी तमाशबीन बनी रही। थाने के नजदीक ये मारपीट की घटना सामने आई, लेकिन पुलिस भी नदारद नजर आई। सीतापुर से अहम खबर, थाने के पास सड़क पर चले लाठी डंडे, पुलिस अनजान बनी रही। सीतापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे कुशीनगर से। अगली खबर है, जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई। दोनों पक्षों के बीच चले हैं लाठी डंडे। मारपीट में युवक की मौत हुई है, कई लोग घायल होने की खबर है। मारपीट के दौरान चीख पुकार मची। मारपीट की घटना से गांव में दहशत का माहौल है। एसडीएम सीओ राकेश प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सेवरही थाने के गौरी जगदीशपुर गांव का यह पूरा मामला है। मारपीट की घटना से गांव में दहशत का माहौल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें राजधानी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शहर के 4 वार्ड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने खरिकापुर प्रथम, द्वितीय व बिजली पासी प्रथम व द्वितीय वार्डों का भ्रमण करते हुए साफ सफाई आदि का जायजा लिया। इलाकों में गंदगी, अव्यवस्थाएं दिखाई देने पर उन्होंने नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए प्रभारी मंत्री ने जोनल अधिकारी सहित कई कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री के साथ मेयर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। रास्ता छोड़िए। स्विच खराब हो गया है, कहीं और कनेक्शन है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। विशेष रूप से लखनऊ के 4 वार्डों का दौरा निर्धारित हुआ था, जिसमें से खारिका फर्स्ट, खारिका सेकंड तथा बिजली पासी फर्स्ट एंड बिजली पासी सेकंड, इन चारों वार्डों में आज जाना हुआ। जहां तक सवाल है खारिका फर्स्ट का, तो उसमें व्यवस्था काफ़ी खराब थी। जितने भी नीचे के कर्मचारी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो मेट हैं, उन सभी लोगों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, प्रभारी मंत्री आज लखनऊ शहर के तमाम वार्डों के दौरे पर रहे। सुरेश खन्ना ने तमाम गलियों का, मोहल्लों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। तमाम जगह खामियां पाई गई, जिसको लेकर मंत्री और मेयर ने नाराजगी भी जाहिर की है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? अश्विनी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आज लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने तमाम जो वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम खामियां पाई। लगातार लखनऊ नगर निगम दावे करता है कि बेहतर काम किया जा रहा है, लेकिन आज खुद मंत्री ने बयान कर दिया कि इतना बेहतर काम लखनऊ नगर निगम कर रहा है। 4 से 5 वार्डों का जो है निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद मुख्य जो प्रभारी मंत्री हैं वो सुरेश खन्ना काफी नाराज दिखे, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था बेपट्टी चल रही, जिसके चलते जोन 4 के जोनल अधिकारी समेत तमाम कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही साथ जोन 8 के जोनल अधिकारी को कार्य में जो निपुणता है उसको लाने का निर्देश दिया। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लखनऊ नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 नंबर पाया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल इस तरह है और कहीं न कहीं जनता परेशान है। और आज प्रभारी मंत्री ने खुद इस चीज को बयां किया। जी
हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण किया है, कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर सुषमा खरगवाल भी साथ में मौजूद रही। राजधानी के 4 वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम खामियां भी पाई गई। जिम्मेदार अधिकारियों के 1 दिन के वेतन काटने की भी निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिए हैं। साथ ही तमाम जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की भी बात कही है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का